Hello students, once again I welcome you all in my class and today we are going to read the first poem for class 9 The Road Not Taken which has been written by Robert Frost. Children, इसके पहले हम इस चैप्टर को रीड करें मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल लर्न इन हिंदी पर आप डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाकर जहाँ पर क्लास 7, 8, 9, 10th के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहाँ से क्लास 9th इंग्लिश के और भी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को वॉच करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। वेल, टुडे वी हैव टू रीड द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. He uses simple language to convey a complex theme and allows for wide interpretation. The reader is generally conflicted as the narrator and they are left with questions. Here this well-known poem, The Road Not Taken, is about making choices and the choices that shape us. हमारी लाइफ में ऐसे कई क्षण आते हैं, ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें कोई चॉइस लेनी होती है और तब उस समय हम कितने कंफ्यूज्ड होते हैं। कई बार हम हमारी चॉइस को सेलेक्ट भी कर लेते हैं, हम चूज कर लेते हैं, लेकिन जिस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया उसको सोच सोच के हम परेशान होते हैं या फिर रिग्रेट करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि अगर उस ऑप्शन को हमने कंसीडर किया होता तो फिर आज कंडीशन क्या रही होती। एट डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ वी गेट सच कंफ्यूजन and we contemplate this situation. So through this poem the poet wants to tell us that in life we are often presented with choices and when making a choice one is required to make a decision. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस पोएम की समरी बताते हैं. So this poem is about a traveler who happens to come across the woods and he stands to a point from where there are two divergent routes. दो रास्ते वहां से गए हुए हैं and he is confused as to which one to pick. कौन से रास्ते पे चला जाए ट्रेवलर को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या करता है, he evaluates the two paths. दोनों ही पाथ को जो उसके सामने है उसको evaluate करता है, अंदर तक देखता है and then he selects one. But at the same time उनके मन में ये भी इच्छा होती है कि जिस पाथ को उन्होंने चूज किया उसके अलावा जो पाथ रह गया अगर उस पाथ पर चलने का मौका मिले तो क्या हो। उन्हें पता भी होता है कि जिस पाथ पे मैं जा रहा हूं मे बी कि वहां से मैं बैक ना हो सकूं, still he selects that road and later he mentions that this selection has brought a difference in his life. नैरेटर ने हमें ये नहीं बताया कि ये किस तरह का डिफरेंस है जो उनके उस ऑप्शन को चूज करने की वजह से हुआ, जो रोड जो भी उन्होंने चुना उसको चूज करने की वजह से क्या डिफरेंस आया, वो डिफरेंस पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, वो खुश हैं या फिर वो रिग्रेटफुल हैं, ऐसा उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। रीडर्स को उन्होंने क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया है, बट स्टिल he is very able to convey this fact that in life we are often presented with choices and when making a choice one is required to make a decision. तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम का explanation. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. Two roads diverged. Diverged means separated. Two roads were separating like this
They were diverging in a yellow wood. Wood means forest, and yellow is showing here the season of autumn. Autumn season है, पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ का असर फॉरेस्ट पे दिख रहा है। और उस फॉरेस्ट के अंदर ये जो दो रास्ते जो डाइवर्ज हो गए हैं, ये दोनों के दोनों फॉरेस्ट जा रहे हैं। And sorry I couldn't travel both. Actually, the narrator, the poet is standing here, the traveler is standing here, and he wants to travel, he wants to enjoy the journey of both the routes. And sorry I could not travel both means the narrator who is standing on the way, he wants to have fun, he wants to enjoy the journey of both the routes. वो दोनों ही रास्ते पे जाना चाहते हैं। And be one traveler long I stood, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, इसलिए वो काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, यहाँ खड़े रहने का मतलब थिंक ओवर करना, सोच विचार करना, वो वहाँ खड़े होकर के सोचते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक्ड डाउन मीन्स हैव अ डाउनवर्ड व्यू। ओके, तो डाउनवर्ड व्यू लेना उसको कहते हैं लुक डाउन करना। वो दूर दूर तक देखते हैं, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं उतनी दूर तक देखते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यहाँ पे बेंट का मतलब क्या है? टर्न से। रोड, ये जो दोनों रास्ते हैं वो जंगल में भीतर की तरफ जब जाते हैं तो वहां कहीं पर जाकर के मुड़ जाते हैं, उसको कहा गया है बेंट करना, झुक जाना। सो टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का क्या मतलब है? यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है उसको डिनोट किया जा रहा है। घने जंगलों में, जंगलों के घनेपन में वो कहीं जाकर के खो जाते हैं। अंडरग्रोथ ऑल्सो मीन्स बुशेस and plants that grow around and under trees. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. What did the traveler do then? तब क्या किया उसने, ट्रैवलर ने, जो कंफ्यूजन में था किस रास्ते से जाया जाए? He took the other, उसने क्या किया? दूसरा वाला रोड ले लिया, द अदर रोड। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ये रोड भी क्या था? उतना ही खूबसूरत था पहले वाले जितना ही, बट इट वॉज हैविंग बेटर क्लेम। ये रोड जो था वो ज्यादा दावा कर रहा था, एक अच्छा दावा कर रहा था। मीन्स इट वॉज इन्वाइटिंग द पोएट, दिस रोड वॉज इन्वाइटिंग द पोएट बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि क्या था इस रोड पे? क्या था? बहुत से ग्रास थे, ये ग्रासी रोड था। वांटेड वेयर मीन्स इट वाज फेल्ट आफ्टर सीइंग द रोड दैट वेरी फ्यू पीपल हैव वॉक्ड अपॉन इट। इट वांटेड वेयर मीन्स दैट रोड नीडेड दैट somebody walks upon it. Though as for that the passing there had warned them really about this, यद्यपि जो भी वहां से गुजरने वाले लोग थे, they had warned them really about the same, उन्होंने लगभग दोनों ही रास्तों का इस्तेमाल किया था, दोनों ही रास्ते इस्तेमाल में थे। and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black, उस सुबह दोनों ही रास्ते जो थे इक्वली, एक जैसे ही ले थे, पड़े हुए थे, यानी दोनों पर कोई ट्रैवलर दिखाई नहीं दे रहा था, आने जाने वाले लोग दिख नहीं रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्ते गिरे हुए थे उन पर कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा था, किसी के भी पैरों के निशान उस पर नहीं दिख रहे थे। बिकॉज व्हेन वी ट्रॉड अपॉन द लीव्स, ट्रॉड का क्या मतलब होता है? टू स्टेप, किसी चीज पर पैर रखना, पैरों से जो कुचल जाता है उसको बोलते हैं ट्रॉड हुआ। तो नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लीव्स के ऊपर जब कोई ट्रॉड करता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, यानी लीव्स जो थी जैसी गिरी थी वैसी ही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले रास्ते को उन्होंने क्या किया? अनदर डे, किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, रख दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इन्हें पता था कि रास्ता जो है वो आगे कैसा हो सकता है। मीन्स ही हैड नो आइडिया अबाउट द रोड, इट वॉज इट माइट बी सम रिस्की ऑल्सो,
तो उन्हें पता है कि रास्ता कैसा है, रास्ता स्मूथ नहीं है, बिकॉज उस पर क्या है, लोग चले नहीं है, nobody had trodden the leaves black. It wanted where it was grassy. This also that less people had traveled on that road. बहुत कम लोगों ने उस रास्ते पर चला था, जिसे पोएट खुद के लिए चूज करते हैं। इसलिए उन्हें पता है जब कम रास्ते पे कोई चलेगा तो मीन्स समथिंग इज देयर ऑन दैट रोड दैट माइट बी अनप्लीजेंट। तो ये पता है कि रास्ता कैसा है। एंड ही डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। वो चाहते हैं कि वो वापस आकर के जो फर्स्ट वाली रोड को, जिसको उन्होंने किसी और दिन के लिए रख दिया है, वहां फिर से आके उस रोड को ट्रेवल करने में इनको डाउट है। लेट मी रिपीट, द ऑथर हैज अ डाउट इफ ही शुड एवर कम बैक सो दैट ही कुड ट्रेवल अपॉन द फर्स्ट रोड ऑल्सो। मतलब भले ही इन्होंने सेलेक्ट किया है सेकेंड रोड, बट मन में इनके अभिलाषा है कि ये फर्स्ट रोड को भी वॉक कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड रोड कुछ ऐसा है जिस पर कम लोग चलते हैं, और इन्हें ऐसा डाउट है कि उस रोड पर जाने के बाद संभवतः वो वापस न आ सके ताकि वो फर्स्ट रोड को ट्रैवल कर सके। So I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. क्या बता रहे हैं? I shall be telling this with a sigh. With a sigh means a deep breath that shows you are sad or disappointed. तो ये कह रहे हैं कि ये सैडनेस के साथ, एक दुख भरी आह के साथ, अफसोस के साथ लोगों को बताते रहेंगे। समवेयर एजेस एंड एजेस एंड, आने वाले युगों युगों तक, यानी बहुत समय तक वो क्या करते रहेंगे, लोगों को इस जो कंफ्यूजन वाला स्टेट था, जो टू रोड्स का जो स्टेट था जहां से ये कंफ्यूज थे किस पर चले, तो इस इंसिडेंट को ये बताते रहेंगे। क्या बताते रहेंगे? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। क्या ये बताते रहेंगे कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड ही टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। क्या बताते रहेंगे कि उन्होंने जो कम इस्तेमाल में आया हुआ जो रोड था, जिस पर कम लोग चले थे, उस रोड को इन्होंने चूज किया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और ऐसा इनकी जिंदगी में जो डिफरेंस आया, ट्रैवलर के, नैरेटर के लाइफ में जो डिफरेंस आया, वो इस लेस ट्रेवल रोड के सिलेक्शन की ही वजह से आया। सो डियर स्टूडेंट्स, thus the moral which we get from this lesson is, in everybody's life a time comes when an individual has two options. We face many dilemmas in our life, hence we must be careful while opting for a final choice, because our choices shape our life. तो बच्चों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आपके सामने दो ऑप्शंस हों और आपको दोनों ही ऑप्शंस को ट्राई करने का, चूज करने का मन हो? यू वर फोर्स्ड टू सेलेक्ट ओनली वन, एंड हाउ डू यू फील आफ्टर सेलेक्टिंग दैट? डू यू कीप ऑन रिग्रेटिंग फॉर लीविंग द फर्स्ट वन, और डू यू जस्ट कीप विथ योर चॉइसेस? आप अपने चॉइसेस, जो भी चॉइस आपने किया उसके साथ खुश हैं, या फिर जो आपने छोड़ दिया उसके लिए पछताते हैं, अफसोस करते हैं? If you feel like sharing this, please share with us in the comment section. And now we'll discuss the literary devices used in the poem. There are many literary devices in the poem. Frost uses many metaphors in this poem. Here, road. Road is an extended metaphor for life. And this diversion means those fork-like roads
एंड जो ये टू रोड्स का ऑप्शन है, these are the metaphors for different choices which we have to make in our lives. Like that, ये जो येलो वुड है ये भी एक मेटाफर है. किसके लिए मेटाफर है? ये हार्ड टाइम्स के लिए मेटाफर है. ठीक है, तो 3 मेटाफर यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया. रोड इज फॉर लाइफ एंड these diversion means walk, like जो 2 रोड्स जा रहे हैं ये हमारे चॉइसेस के लिए है. और बाकी येलो वुड जो है जो कि ऑटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हार्ड टाइम्स को डिनोट कर रहा है. सो दिस वाज द यूज ऑफ मेटाफोर. नाउ देयर इज अनदर लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम एंड दैट इज इमेजरी. आप जब इस पोएम को शुरू से पढ़ते हैं, जहां पर भी पोएम ने जो अपने स्टैंडिंग पोजीशन को एक्सप्लेन किया है, मीन्स let us take example of the first paragraph, 2 roads diverged in a yellow wood. इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि रोड कैसा है, ग्रासी है, इट वांटेड वेयर, इट वाज फेयर. तो इससे भी हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है. तो यहाँ पर पोएट हैज यूज्ड इमेजेस ऑफ द सेंस ऑफ साइट सच एज लीव्स, येलो वुड्स, एंड दीज इमेज हेल्प रीडर्स टू एक्चुअली परसीव थिंग्स दे आर रीडिंग. The image of the road helps readers to visualize the road. इन लाइन्स को पढ़ने के बाद आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाता है और इसे कहते हैं यूज ऑफ इमेजरी. नाउ सेकेंड जो हमारा लिटरेरी डिवाइस था वो था इमेजरी. ठीक है, जिसमें हमारे माइंड में इमेज बनता है डिस्क्रिप्शन को पढ़ पढ़ के. अब हम पढ़ते हैं सिमिली को. तो सिमिली is a device used to compare things with familiar things to let the readers know it easily. ये क्या होता है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिली इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड और एंड हियर ओनली वन यूज इज देयर. As just as fair. It shows how the poet has linked the road less taken to the easy way through life. Next literary device जो फ्रॉस्ट ने इस पोएम में यूज किया है वो क्या है? एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द vowel sound such as the sound of A and O in quick succession. ठीक है, एसोनेंस आप देख सकते हैं. समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस. यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ये जो ई लेटर है इसको नोटिस कीजिए. ई अगेन ई, हेयर ऑल्सो. ठीक है, तो हेयर दिस वॉवेल हैज बीन यूज्ड वेरी क्लोजली एंड इट्स प्लेस इज नॉट फिक्स्ड. समवेयर इट इज in the middle of the word, somewhere at the end of the word, okay, somewhere at the starting also. ऐसा जब भी यूज हो तो हम कहते हैं कि एसोनेंस का यूज हुआ है. अगेन कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है. ठीक है, कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस भी जस्ट इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एसोनेंस, बट इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं. जैसे आप देखिए यहाँ 2 roads diverged in a wood and I. यहाँ देखिए D इज अ कॉन्सोनेंट और ये भी काफी क्लोजली इसका यूज हुआ है और सेम लाइन में, और इससे भी एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. तो सच यूज ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज कॉन्सोनेंस. नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम में वो है पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन कहाँ है? आप देखिए वांटेड वेयर. व्हाट वांटेड वेयर? द सेकंड रोड वांटेड वेयर. अदर जो रोड था, जो ट्रैवलर ने, जो नैरेटर ने चूज किया था, वो रोड जो है वो दैट वांटेड वेयर. मीन्स ऐसा लग रहा है कि ये रोड नहीं, कोई पर्सन है जिसकी अपनी एक इच्छा हो, जिसकी विश हो. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है.
The next device used by the narrator is alliteration. आप देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड स्टैंजा में W letter has been very closely used in the beginning of the words which are closely connected. Like was में आप देखिए यहाँ W से बिगिन किया गया है, बिगिनिंग लेटर वांटेड में भी W है, बिगिनिंग लेटर जो है कॉन्सोनेंट वो वेयर में भी है। तो एक बहुत ही क्लोजली इनका इस्तेमाल हुआ है इन तीनों वर्ड्स का, और सबकी जो बिगिनिंग है इन तीनों की वो WWW से है। तो सच यूज इज नोन एज एलिटरेशन। एक ऐसा ही इस्तेमाल और हुआ है, यहाँ देखिए TH दो, TH दैट, द एंड देयर। तो यहाँ पर भी एलिटरेशन का यूज हुआ है। एलिटरेशन के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पोएम से रिलेटेड सभी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन विच आई हैड आस्क्ड यू। शुड आई रिपीट इट? वेल, द क्वेश्चन वाज, हैव यू ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reason? क्या आप भी कभी ऐसी अवस्था में, कठिन परिस्थिति में पड़े हुए हैं जब आपको एक बहुत ही कठिन फैसला लेना हो? How will you make the choice? जब आपको कोई कठिन फैसला लेना हो तो आप उस फैसले को कैसे डिसाइड करेंगे? कौन से वो रीजंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने चॉइस को ऑप्ट करेंगे? तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू and have a nice day.